we are finding Laplace transform using properties of Laplace transform. Okay, तो इसमें we have seen first shifting property का problems in the previous lecture. Now quickly let us recall what this first shifting property is again. First shifting property is used when you have to find Laplace transform of a function where exponential function is multiplied with f of t. Now this could be e raised to at, this could be e raised to minus at also. So when you see this exponential function is multiplied with some function f of t, we know we have to use first shifting property. Okay. So how do we use this property now? तो first of all ये जो exponential function है इसको delete करना है. जो बचता है उसका पहले लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है. सो वी फर्स्ट फाइंड लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी. नाउ सपोज दैट लप्लास ट्रांसफॉर्म कम्स आउट टू बी फाई ऑफ एस. उसके बाद if you are multiplying this f of t by e raised to at, you replace s by s minus a. यानी अपना लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to at into f of t is phi of s minus a. If you are multiplying this f of t by e raised to minus at, then you have to replace s by s plus a. मतलब Laplace transform of e raised to minus at into f of t is equal to phi of s plus a. So this is what we have seen. Okay. The next thing we have seen is how to solve problems where hyperbolic functions are involved. तो अपने पास दो hyperbolic functions है, sin hyperbolic at, cos hyperbolic at. Okay, तो इसमें there is one small thing that we need to be careful about. Suppose you have to find Laplace transform of this function 5 into sin hyperbolic 2t plus cos 3t. यहाँ पर आपने देखा तो this sin hyperbolic 2t function is alone. It is not multiplied with any other function. Constants के साथ multiplied है fine, but it is not multiplied with any other function. Okay, तो अगर ऐसा problem है तो we will separate this using linearity property और बाद में linearity property use करेंगे तो मिलेगा 5 times Laplace transform of sin hyperbolic 2t प्लस लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t. ओके, तो यहाँ पे हमें लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला यूज करना है विच इज a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. इन केस अपना क्वेश्चन है लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t इनटू cos 3t. तो यहाँ पर द सेम साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है लेकिन ये cos फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है. In this case what we have to do, we have to first use the formula for sin hyperbolic at which is e raised to at minus e raised to minus at upon 2, and then we'll open the bracket and e raised to at, e raised to minus at have come in the picture means we'll have to use first shifting property. So these are the two things which you have to keep in mind. ये hyperbolic function आता है तो problem कैसे solve करना है. Here I have taken example of sin hyperbolic function. Same thing is applicable when you have cos hyperbolic function. यहाँ तक ठीक है. This is what we have done in the previous lecture. यहाँ पर कोई doubt है? Okay, fine so far. No, ठीक है. So we proceed ahead. Now we'll start with the type of problem that I am going to discuss in today's lecture. Now let's see the first problem. Find Laplace transform of t into sin 2t. Okay. So now here we can see two functions are multiplied together. One is t, that is an algebraic function. t raised to 1 है ये, वो भी specifically t raised to 1 है. Okay. So t is multiplied with sin 2t. Now the moment we see this function t, तो इमीडिएटली हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. इससे पहले e रेस टू at को देख के पता चलता है प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. e रेस टू माइनस at को देख के पता चलता है कि प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. उसी तरह यहाँ पर इस t, when this t is multiplied with some function, then we know we can use a property. Let us see which property we are going to use.
that property is called as multiplication by t property. Okay, so before going for the solution of this problem, let us see what this property is all about. Okay, now this property is used when you have to find Laplace transform of t multiplied with f of t, that is t multiplied with some function of t. Okay, तो इसका प्रोसीजर क्या है, ये t जब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले ये t को डिलीट कर दो, जो बचता है उसका पहले लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो. ओके, सो फर्स्ट फाइंड लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन विच इज रिमेनिंग, विच इज अदर देन t. तो t को डिलीट किया, बचता है f of t, so we first find Laplace transform of f of t. एंड सपोज इसका आंसर मिलता है सम फंक्शन फाई ऑफ एस. ओके, अब हमें क्या करना है, ये f of t में t मल्टीप्लाई करना है टू गेट दिस. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय t हियर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, लेट अस सी राइट हैंड साइड में क्या होता है. राइट हैंड साइड में दो चीजें होती है. This function which we got here on the right hand side, phi of s, that will get differentiated with respect to s, and the entire thing gets multiplied with -1. ओके, तो दो चीजें होती है. लेफ्ट हैंड साइड में f of t के साथ अगर आप t मल्टीप्लाई करते हो तो राइट हैंड साइड जो फंक्शन मिलता है phi of s, that gets differentiated with respect to s, and the entire thing, entire right hand side gets multiplied with -1. तो let us see the statement. इसका मतलब है Laplace transform of t into f of t is equal to -1 into, so that is minus derivative with respect to s of phi of s. Okay, so this statement is called as multiplication by t property. Is this clear? इसको प्रॉब्लम में यूज करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, बट राइट नाउ ये समझ में आया क्या करना है. ओके ओके, तो यहां पर हमने एक t से मल्टीप्लाई किया f of t को t raised to 1, मतलब वी जस्ट मल्टीप्लाइड इट विथ 1t. तो ये phi of s को एक बार डिफरेंशिएट किया और पूरा राइट हैंड साइड को -1 से एक बार मल्टीप्लाई किया. करेक्ट. Now suppose if we have to find Laplace transform of f of t multiplied with t square, मतलब t कितनी बार multiplied है, t square मतलब t into t, so there are two t's multiplied. Okay, तो if we are multiplying f of t with t two times, क्या लगता है राइट हैंड साइड में क्या होगा, डेरिवेटिव कितना बार लेना पड़ेगा, टू टाइम्स. -1 से कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू टाइम्स. यस, यू ऑल आर राइट. तो इसका स्टेटमेंट होगा -1 स्क्वायर एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ phi of s. ओके, अगर हमें फाइंड आउट करना है लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्यूब इंटू f of t, यानी f of t के साथ t मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, तो फिर राइट हैंड साइड में क्या आएगा, -1 द होल क्यूब एंड थर्ड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ phi of s. ओके, सो आपको पैटर्न समझ में आ गया. इसको मैं जनरलाइज करती हूँ. सपोज आपको फाइंड आउट करना है लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू n इंटू f of t, मतलब f of t के साथ t मल्टीप्लाई करना है n टाइम्स, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, phi of s will get differentiated with respect to s n times, and then we'll multiply with -1 n times. Is this clear? Procedure is clear? Okay. अपना सिलेबस में मैक्सिमम हमें we'll have to use t square तक आता है, उससे ज्यादा नहीं आता, because then the problem becomes very lengthy. Okay, so anyway, let us see the problem. So now that we have understood this multiplication by t property, let us come back to our question. हमें find out करना है Laplace transform of t into sin 2t. Okay, तो ये t को मल्टीप्लाई किया हुआ देखकर हमें पता चलता है मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी यूज करना है. तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ये t को हटाना है, जो बचता है उसका लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है. तो वी फर्स्ट बिगिन विथ, दैट इज कंसीडर लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t. ओके, अब ये लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला,
तो इसका आंसर है इट इज 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज 4। तो ये हमें लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t मिल गया, इसमें आगे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे t से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन 2t। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही हमने t के साथ मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड में क्या होगा, this right hand side will get differentiated with respect to s and we have to multiply with 1 minus 1. So this will be equal to minus derivative with respect to s of 2 upon s square plus 4. अब ये जो न्यूमरेटर में 2 है, दिस इज अ कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव के बाहर निकालते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ, ये 2 को बाहर निकाल दिया तो हमारे पास है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ओके, नाउ वी हैव टू सी कि इस डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करना है। तो दिस इज द स्टेटमेंट वी हैव। तो हियर वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, derivative with respect to s of 1 upon v, where v is a function of s, is equal to minus 1 upon v square into derivative with respect to s of v. Okay, I repeat, derivative of 1 upon v is minus 1 upon v square into derivative of v. तो हमें यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है 1 अपॉन दिस डिनोमिनेटर का, ये v के जगह पे है ये डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस 4। सो इसका डेरिवेटिव आएगा, दिस माइनस 2 विल कम एज इट इज, ये 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4। ओके, वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला। इज दिस स्टेप क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल? ये डेरिवेटिव कैसे लिया है? यस, ओके, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये वाला प्रॉपर्टी जो है ना बहुत सिंपल है, बट इसमें डेरिवेटिव आता है तो हमें सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो डेरिवेटिव्स है वो हमें देखना है। ओके, तो लेट अस, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप वी हैव। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन v इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। ओके, तो ये v इज द डिनोमिनेटर, तो अगर इसके जगह पे मैं ये स्टेटमेंट को ऐसे बोलूं, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है, तो इसको यहाँ पे यूज करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, तो ये डिनोमिनेटर है अपना, तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला आएगा ये माइनस 2 यहाँ वैसा का वैसा रहेगा, इस डेरिवेटिव का फॉर्मूला आएगा माइनस 1 अपॉन द डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर के जगह पे आएगा माइनस 1 अपॉन दिस डिनोमिनेटर का स्क्वायर into derivative of the denominator, into derivative of the denominator, जहां पर अपना डिनोमिनेटर है एस स्क्वायर प्लस 4। अभी समझ में आया? ओके, ओके, जस्ट फॉर कन्वीनियंस आई विल रिपीट अगेन, derivative of 1 upon denominator, derivative of 1 upon denominator is minus 1 upon denominator square। तो यहाँ पे लिखा minus 1 upon whatever is the denominator, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ओके, तो procedure will remain the same, so minus 1 upon denominator का square into derivative of the denominator, so into derivative ऑफ द डिनोमिनेटर। तो हमने सिर्फ ये फॉर्मूला यूज किया है, ये फॉर्मूला हम 2-3 बार यूज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। राइट नाउ याद नहीं है तो टेंशन मत लेना, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला है और इसको हमने यहाँ पर कैसे यूज किया है। ओके, ओके, अब यहाँ पर सिंप्लीफाई, दो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ये माइनस 2 इंटू माइनस 1 ये अपना 2 बन जाएगा और हम डेरिवेटिव लेंगे एस स्क्वायर प्लस 4 का, तो एस स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2s प्लस 4 का डेरिवेटिव, 4 इज अ कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव है 0। ओके, सो लेट्स राइट दिस, तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 2 इंटू माइनस 1 दैट इज 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर
और इसका डेरिवेटिव हमने लिखा एस स्क्वायर का डेरिवेटिव मिला 2s प्लस 4 का डेरिवेटिव है 0। ओके, इज दिस क्लियर? अब ये 2s प्लस 0 इज 2s, तो ये 2s को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हमें मिलेगा 4s, तो दिस विल बी 4s अपॉन, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट तो स्क्वायर का है तो इसको हम ओपन कर सकते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर के का फॉर्मूला यूज करके, सो वी ओपन इट, दिस विल बी a का स्क्वायर दैट इज दिस टर्म का स्क्वायर, s स्क्वायर का स्क्वायर मिला s रेज टू 4 प्लस 2 into this term into this term, so 2 into s square into 4 gives us, oh sorry, this has to be 8s square plus 4 का square आएगा 16. Okay, 1 minute, I'll make this correction. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन, ये लास्ट वाले स्टेप में ये करेक्शन कर दिया है एंड दिस इज द फाइनल आंसर. चेक इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें कुछ भी आपको रिपीट करना है? द प्रीवियस 1 मिनट, अमित का क्या डाउट है? t square into sin hyperbolic t raised to 2 must be using, okay. अमित हैज आस्क्ड अ डाउट कि अगर हमारे पास है लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर इनटू sin hyperbolic स्क्वायर t, तो इसको t मेथड से सॉल्व करना है क्या? यस, वी कैन सॉल्व इट बाय द t मेथड, लेकिन वो t को देखने से पहले आपको क्या दिखता है? हाइपरबोलिक फंक्शन दिखता है, साइन हाइपरबोलिक. साइन हाइपरबोलिक फंक्शन मल्टीप्लाइड है टी स्क्वायर के साथ, तो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन अगर किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो हमें क्या करना है? साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला, डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा. करेक्ट, दैट इज साइन हाइपरबोलिक टी इक्वल टू ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन 2. ये सब्सटीट्यूट करके फिर आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा वहां पर? कोई बताएगा कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. यस, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. यस अमित, समझ में आया? तो यहां पर कैसे है ना, सेम प्रॉब्लम में, एक ही प्रॉब्लम में बहुत सारा मेथड्स है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज, आई मीन इट कैन बी डन बाय डिफरेंट डिफरेंट वेज, बट देयर विल बी वन पर्टिकुलर मेथड जहां पे शॉर्टर रहेगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विल बी शॉर्टर, लेस कंफ्यूजन. तो वी विल बी सीइंग कि उसमें की पॉइंट्स हमको क्या पकड़ना है. तो आपको जिस तरह से हम इंट्रोड्यूस कर रही हूं मैं, तो आपको उस ऑर्डर में चीजों को पकड़ना है. ओके, फर्स्ट आई टोल्ड यू लुक एट दी ऑपरेटर्स. तो जब आप लप्लास ट्रांसफॉर्म को देखोगे तो सबसे पहले आपको ऑपरेटर्स ढूंढना है कि ये प्रॉब्लम के अंदर प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लीकेशन है या डिवीजन है. ओके, लाइक यहाँ पर हमने देखा कि मल्टीप्लीकेशन है. उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन कौन सा है, हाइपरबोलिक फंक्शन है क्या. ओके, तो हाइपरबोलिक फंक्शन है तो उसका हमने देखा है, आज रिकॉल में देखा है उसको कैसे अप्रोच करना है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम नेक्स्ट ढूंढेंगे, सबसे पहले हाइपरबोलिक फंक्शन को ढूंढेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ढूंढेंगे, उसके बाद टी आज पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी आज इंट्रोड्यूस किया है, तो टी उसका नेक्स्ट ढूंढेंगे. ओके, नाउ धीरे धीरे जैसा हमारा प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस होगा
once all the properties are introduced, उसके बाद I will take problem session where we have all this combination together. एक ही problem में आपको बहुत सारे properties use करने हैं, so that time आपको कैसे decide करना है वो और clear हो जाएगा. okay, तो right now जो भी doubt आता है पूछते रहना. That was a very good doubt, Amit. Okay, shall we proceed to the next question? Okay, अभी देखो next question similar है. Find Laplace transform of t into cos 3t. पिछला प्रॉब्लम में t into sin फंक्शन था, इसमें t into cos है, तो इसमें फर्क क्या रहेगा? Let us see that. तो हमें फाइंड आउट करना है Laplace transform of t into cos 3t. As I told you, सबसे पहले हमें साइन देखना है, मल्टीप्लीकेशन है. जब आप मल्टीप्लीकेशन देखोगे तो आपको पता है कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी आप यूज नहीं कर सकते, तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म को सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप अंदर फंक्शंस को ढूंढोगे. cos 3t अगर है तो अभी तक तो हमने cos 3t के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वन ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लाइड इज t. t के लिए प्रॉपर्टी है. ओके, कौन सा प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी. तो हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी यूज करेंगे. मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये t को हटाना है और जो बचता है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो. t को हटाने के बाद यहाँ पर क्या बचता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t. तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t. दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला. This is s upon s square plus 3 square which is 9. So ये आंसर हमें मिल गया s upon s square plus 9. ओके, अब इसमें t मल्टीप्लाई करना है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t into cos 3t क्या होगा? It will be minus derivative with respect to s of this right hand side, that is s upon s square plus 9. ओके, तो अब हमें देखना है कि ये डेरिवेटिव कैसे लेना है. यू कैन सी यहाँ पर कुछ बाहर हम निकाल नहीं सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा. यहाँ पर न्यूमरेटर में भी s फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी s फंक्शन है. वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू s. तो इसका डेरिवेटिव के लिए हमें डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v का फॉर्मूला यूज करना है. तो ये फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला दिखता सब थोड़ा खतरनाक है, बट इसका प्रोसेस समझना है आपको, और ये प्रोसेस आप जैसे 2-3 प्रॉब्लम में यूज करोगे रेगुलरली, एकदम पकड़ में आ जाएगा. ओके, प्रॉब्लम नहीं होगा. तो लेट अस सी दिस. डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, लेट मी कॉल इट एज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले है डिनोमिनेटर v है, तो डिनोमिनेटर into derivative of the numerator minus numerator into derivative of the denominator, the whole upon denominator square. ये है अपना फॉर्मूला. ओके, आई रिपीट वंस अगेन. डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s, ये u अपॉन v है, but I am going to say it in terms of numerator upon denominator. okay, so it is denominator. तो सबसे पहले denominator आता है, denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator upon denominator square. All right, so we can use this formula irrespective of what is your numerator. numerator कुछ भी हो, function of s, कोई भी function हो, कोई भी function denominator में हो, पहले ये formula use करना है. तो let us first use this formula. तो ये माइनस तो वैसा का वैसा रहेगा, सो यू सी दिस माइनस हियर एज इट इज. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये डेरिवेटिव क्या होगा? डिनोमिनेटर, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर वैसा का वैसा लिखा है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. राइट नाउ आई एम नॉट इवन लुकिंग एट व्हाट द न्यूमरेटर इज, वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज, वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट स्टेप. सबसे पहले से फॉर्मूला यूज करते हैं. तो दिस डिनोमिनेटर वी रोट इट एज इट इज इन अ ब्रैकेट. किसी का तो साउंड आ रहा है, प्लीज म्यूट कीजिए. ओके, या गुड, थैंक यू. नहीं, फिर से साउंड आ रहा है. किसी ने अनम्यूट किया है, प्लीज, बैकग्राउंड साउंड इज कमिंग. या, थैंक यू. सो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, करेक्ट. तो
सबसे पहले आएगा डिनोमिनेटर, वैसा का वैसा डिनोमिनेटर को ब्रैकेट में लिखा है इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर उसको ब्रैकेट में लिखा है इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर द होल अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, हमने ये फॉर्मूला वैसा का वैसा यूज किया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। यहां पर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एस, डेरिवेटिव ऑफ एस विल बी 1, तो ये हम सब्सटीट्यूट करेंगे। ये जो डेरिवेटिव है ऑफ एस स्क्वायर प्लस 9, ये डेरिवेटिव होगा 2s प्लस 9 का डेरिवेटिव होगा 0, तो ये हम सब्सटीट्यूट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। लेट अस सी, देखो ये माइनस वैसा का वैसा है, एस स्क्वायर प्लस 9 हमने वैसा का वैसा लिखा है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एस इज 1, तो 1 सब्सटीट्यूट किया, माइनस ये s हमने वैसा का वैसा लिखा है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ s स्क्वायर प्लस 9, s स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2s प्लस 9 इज अ कांस्टेंट बिकॉज इसमें कोई s दिखाई नहीं दे रहा है, तो 9 का डेरिवेटिव है 0। ओके, अपॉन डिनोमिनेटर वी हैव रिटन इट एज इट इज। ओके, अभी क्या करना है, न्यूमरेटर का ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो लेट अस सी, दिस माइनस विल रिमेन एज इट इज, s square plus 9 into 1 will give you s square plus 9 minus s into this 2s plus 0 is actually 2s, so s into 2s becomes 2s square, so we get minus 2s square upon s square plus 9 the whole square। okay, अब यहाँ न्यूमरेटर में यू कैन सी एस स्क्वेयर वाले दो टर्म्स है, तो इनको कंबाइन कर सकते हैं, एस स्क्वेयर माइनस 2s स्क्वेयर विल गिव यू माइनस एस स्क्वेयर, तो ये माइनस वैसा का वैसा, एस स्क्वेयर माइनस 2s स्क्वेयर इज माइनस एस स्क्वेयर एंड दिस इज प्लस 9। ओके, अभी हमें आगे क्या सिंप्लीफिकेशन करना है, ये डिनोमिनेटर वाला जो ब्रैकेट है ये स्क्वेयर है और ये स्क्वेयर वाला ब्रैकेट हमें ओपन करना आता है, करेक्ट, तो इसको हम ओपन करेंगे। हमने देखा था ना कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर क्यूब या उसके ऊपर के पावर्स है तो वो ब्रैकेट हम ओपन नहीं करेंगे, लेकिन अगर स्क्वेयर वाला ब्रैकेट है तो हम वो ओपन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये माइनस को न्यूमरेटर में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई किया, दिस माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस एस स्क्वेयर एंड दिस माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस 9। ओके, और डिनोमिनेटर का ब्रैकेट को ओपन करते हैं, सो सी वी गेट दिस माइनस इंटू माइनस एस स्क्वेयर इज प्लस एस स्क्वेयर, माइनस इंटू प्लस 9 इज माइनस 9 अपॉन यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या आएगा, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर दैट विल बी एस स्क्वेयर का स्क्वेयर इज s रेज टू 4 plus 2 into this that is 2 into 9 that is 18 s square plus 9 ka square is 81। okay, and this becomes the final answer। is this understood? okay, good, shall we proceed ahead? okay, let's see the next problem now। now अपना next problem है, we have to find Laplace transform of t square into sin 3t। ओके, तो ये साइन फंक्शन है लेकिन इसके साथ टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड है। तो सबसे पहले जैसे कि लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम ऑपरेशन देखेंगे। ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन, टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड। इसमें से कोई प्रॉपर्टी वाला फंक्शन है क्या, चेक करते हैं, है। ये जो टी स्क्वायर है ये प्रॉपर्टी वाला फंक्शन है। कौन सा प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी यहाँ पर कितनी बार यूज करना है, 2 बार यूज करना है। ओके, तो हमें सॉल्यूशन का पूरा जो है स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब इसे प्रोसीड करते हैं। तो अगर मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी 2 बार यूज करना है तो हम 2 बार एक साथ नहीं यूज करेंगे, विल यूज इट 1 एट अ टाइम। ओके, तो सबसे पहले ये जो टी स्क्वायर है इसको पूरा का पूरा डिलीट करना है, जो बचता है उसका लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, दैट इज लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t।
अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9. ओके, अब इसमें एक t मल्टीप्लाई करेंगे, विल मल्टीप्लाई ओनली 1 t फर्स्ट. तो जब यहाँ पर एक t मल्टीप्लाई करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन 3t, तो राइट हैंड साइड विल बी माइनस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s अपॉन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ दिस राइट हैंड साइड, करेक्ट. तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकालते हैं. तो दिस विल गिव अस -3 इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9. ये 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 का डेरिवेटिव कैसे निकालना है? डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला. तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है -1 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर. ओके, तो यहाँ पर ये पूरा डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला वैसा का वैसा लिखते हैं. ये -3 वैसा का वैसा आएगा. अब डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन डिनोमिनेटर में आता है -1 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. तो ये आ गया -1 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. फिलहाल हम देख भी नहीं रहे कि डिनोमिनेटर क्या है. वॉट एवर इज इन द डिनोमिनेटर विल पुट इट हियर. ओके, सो -1 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर ये लिख दिया into derivative of denominator. So into derivative of the denominator. तो ये फॉर्मूला डाल दिया हमने डेरिवेटिव का. अब इसमें सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पर क्या सिंप्लीफिकेशन है? ये डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर प्लस 9 ये आता है हमें, करेक्ट. इसमें कैसे होगा? s स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2s प्लस 9 का डेरिवेटिव आएगा 0. 9 कांस्टेंट है, इसमें कोई s का टर्म नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0. और क्या कर सकते हैं? -3 इंटू -1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 3 हो जाएगा. तो लेट्स सी, -3 इंटू -1 इज 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर, और इसका हमने डेरिवेटिव लिख दिया. s स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखा 2s प्लस 9 इज अ कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव आया 0. अब 2s plus 0 is 2s, we multiply it with 3 तो मिल जाएगा 6s. तो यहाँ पर है 6s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर. ओके, तो ये डिनोमिनेटर का ब्रैकेट को अभी ओपन करना है? नहीं, ये ओपन हम लास्ट में करेंगे. अभी अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ नहीं है ना. ये किस चीज का आंसर है? दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन 3t, और हमें चाहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वेयर इंटू साइन 3t, बराबर. तो मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी एक और बार हमें यूज करना है ना, तो वो यूज करने के बाद हम ये ओपन करेंगे, तो थोड़ा आसान होता है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन 3t इज 6s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर. अब यहाँ पर हम t मल्टीप्लाई करेंगे. ऑलरेडी एक t है, एक और t मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर इंटू साइन 3t. यहाँ पर t मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा? माइनस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ दिस एंटायर राइट हैंड साइड, दैट इज माइनस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ 6s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर ये 6 कांस्टेंट जो दिख रहा है न्यूमरेटर में, इसको पहले हम डेरिवेटिव के बाहर निकालते. तो ये मिलेगा -6 इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर. अब हम देखते हैं कि ये डेरिवेटिव कैसे करना है. अब यहाँ पर न्यूमरेटर में भी s फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी s फंक्शन है, तो इस डेरिवेटिव के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? 1 अपॉन डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फॉर्मूला? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, करेक्ट. यस, वेरी गुड. u अपॉन v या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या है? डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. तो फॉर्मूला पहले सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये -6 वैसा का वैसा आएगा, और ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला में पहले आएगा डिनोमिनेटर. हम डिनोमिनेटर को सिर्फ वैसा का वैसा लिख रहे हैं. ओके, वी आर जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला फर्स्ट. सो डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस
न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में है स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर प्लस 9 द होल रेज टू 4। ओके, यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं किया, हमने सिर्फ फॉर्मूला वैसा का वैसा डाला है। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो पहला सिंप्लीफिकेशन ये डेरिवेटिव का होगा। ओके, तो लेट्स सी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s, ये हमें पता है इट इज 1। लेट अस लुक एट दिस वन, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर, ये कैसे करेंगे? अभी देखो, अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर पूछेंगे तो वी नो द आंसर इज 2s। ओके, लेकिन उसके जगह पे डेरिवेटिव ऑफ समथिंग स्क्वायर, लेट मी कॉल दिस एज डेरिवेटिव ऑफ अ ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये u है, मैं u के जगह पे ब्रैकेट बोल रही हूँ बिकॉज जो भी फंक्शन है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा है हमने और विथ स्क्वायर है ना, तो ये हमको समझने में इजी हो जाएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ, yes it is called as chain rule, very good, derivative with respect to s of bracket square is 2 times the bracket into derivative of the bracket. Okay, so I repeat again, derivative of some bracket square is equal to 2 times that bracket into derivative of that bracket। तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे और हमारा ब्रैकेट में क्या है, s square plus 9। so let's see this, -6 we write it as it is, ये s square plus 9 the whole square, इसको वैसा का वैसा लिखा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s of s is 1, तो ये सब्सटीट्यूट किया, this minus comes here as it is, this s comes here as it is। अब ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, दिस विल बी 2 टाइम्स द ब्रैकेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट। ओके, तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पर, अपॉन ये डिनोमिनेटर तो वैसा का वैसा रहेगा। ओके, अब इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, यहाँ पर देखो ये एक डेरिवेटिव है तो ये डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ये सिंप्लीफाई करने हमें आता है, ये क्या है, इसका तो कुछ पावर नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव s स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2s प्लस 9 इज अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव होगा 0। ओके, तो ये हम नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ लेट अस सी, ये -6 वैसा का वैसा है, s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर इंटू 1 इज s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर, माइनस s को वैसा का वैसा लिखा है 2 इंटू s स्क्वायर प्लस 9 वैसा का वैसा लिखा है, यहाँ पर ये हमने डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई किया है सिर्फ, तो ये डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर इज 2s प्लस 9 का डेरिवेटिव है 0 अपॉन दिस डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके, अब इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर अगर आपने न्यूमरेटर में नोट किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है और 2 टर्म्स है, ये पहले वाले टर्म में s स्क्वायर प्लस 9 है, दूसरे वाले टर्म में भी s स्क्वायर प्लस 9 है, तो यहाँ पर हम s स्क्वायर प्लस 9 न्यूमरेटर में कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, तो लेट्स टेक दैट कॉमन, तो ये -6 वैसा का वैसा रहेगा, देखो ये s स्क्वायर प्लस 9 कॉमन निकाला है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में क्या बचता है, तो ये हमारा ओरिजिनली s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर था, उसमें से एक s स्क्वायर प्लस 9 हमने कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एक s स्क्वायर प्लस 9 माइनस ये s विल रिमेन एज इट इज, 2 विल रिमेन एज इट इज, ये s स्क्वायर प्लस 9 तो हमने कॉमन निकाल दिया, और ये 2s प्लस 0 इज 2s, दैट वी विल गेट हियर अपॉन द डिनोमिनेटर। ओके, बाय द वे ये स्क्वायर प्लस 9 कॉमन निकालने का फायदा क्या है, क्यों कॉमन निकाला हमने, ये कैंसिल होता है ना, डिनोमिनेटर के साथ एक कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, करेक्ट। So let us cancel this 1 s square plus 9 with the denominator. तो let us see क्या होता है, तो ये कैंसिल, ये -6 वैसा का वैसा है। ओके, तो ये कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर के साथ, तो देखो डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस 9 द होल क्यूब बच गया। ओके, अब ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट को हमने सिंप्लीफाई किया है, s स्क्वायर प्लस 9 माइनस ये क्या है
s into 2 into 2 into s, 2 2s are 4, s into s is s square. ओके, तो ये सब ब्रैकेट को यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिखा है. अब यहाँ पर भी देखो न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है. एस स्क्वेयर माइनस 4s स्क्वेयर, दिस विल बी माइनस 3s स्क्वेयर. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -6 वैसा का वैसा रहेगा. एस स्क्वेयर माइनस 4s स्क्वेयर इज माइनस 3s स्क्वेयर और ये +9 अपॉन दिस डिनोमिनेटर एज इट इज. अब हम वी कैन लीव दिस एज इट इज, या ये -6 को अंदर ले सकते हैं, या फिर इसमें से -3 को कॉमन निकाल सकते हैं. यहाँ पर any way of simplification is possible. Since I do not want to write too many brackets, तो मैंने ये -6 को अंदर लिया है. तो -6 into -3 is +18 s square, -6 into +9 is -54 upon s square plus 9 the whole cube. डिनोमिनेटर को यहाँ पे ओपन करना है ब्रैकेट? नो, बिकॉज द पावर इज 3. तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर. ये थोड़ा लेंदी था बट समझ में आया? ओके ओके, आई नो आई हैव एक्सीडेड माय टाइम ऑलरेडी. 10:50 हो गया है, बट एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं जो सिर्फ 5 मिनट लगेगा. ओके, सिर्फ 5 मिनट. शैल वी टेक वन स्मॉल प्रॉब्लम प्लीज? ओके ओके, थैंक यू. I know you all need time before the next lecture, पर एक छोटा सा ले लेते. ओके, नाउ देखो, सपोज हमें फाइंड आउट करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू 5 इंटू e रेज टू 2t. ओके, तो अपना प्रोसीजर यूज करेंगे. तो पहला ऑपरेशन देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन है. अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हम चेक करते हैं कोई प्रॉपर्टी यूज होता है या नहीं. तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा तो क्या कौन याद आया? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. t रेज टू 5 देखा तो कौन याद आया? मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी का स्कोप है और इन दोनों के अलावा इस ब्रैकेट के अंदर और कोई फंक्शन है ही नहीं. तो इसमें हमारे पास दो चॉइसेस है. ओके, शैल वी यूज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और शैल वी यूज मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी? इसको थोड़ा हम लोग ये सोचते हैं. अगर हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड विद दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन. मतलब आपको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिलीट करना पड़ेगा. कौन बचा? t रेज टू 5. t रेज टू 5 का आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करोगे. उसके बाद जो आंसर है उसमें s के जगह पे s-2 रिप्लेस करोगे. अगर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किया तो ये प्रोसीजर होगा. और अगर आपने मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी यूज करने की सोची तो मल्टीप्लीकेशन t प्रॉपर्टी मतलब ये t रेज टू 5 टर्म को गायब करना पड़ेगा, करेक्ट? और जो बचता है उसका पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो वी फर्स्ट फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 2t और बाद में हमें मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी यूज करना है. कितनी बार? 5 बार. मतलब डिफरेंशिएट करना है 5 बार और मल्टीप्लाई करना है -1 से 5 बार, मतलब -1 रेज टू 5 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो इन दोनों ऑप्शन करेक्ट है. दोनों ऑप्शन आपको फाइनल आंसर सेम मिलेगा. बट ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन प्रेफरेबल है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. आकांक्षा डियर, बाय टी प्रॉपर्टी 5 बार डिफरेंशिएट करने में आपको इतना मजा आता है? एक बार 2 बार डिफरेंशिएशन में ही हमारी थोड़ा टेंशन आ जाता है ना. नो, आई नो यू आर कॉन्फिडेंट विद डेरिवेटिव, बट फिर भी ना डिफरेंशिएशन से बेटर रिप्लेस करना है ना. तो ऐसा जब केस आएगा जहां पे आपको मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी का स्कोप है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का स्कोप है और इन दोनों के अलावा कोई और फंक्शन नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट फ्रॉम माय साइड, माय ओपिनियन, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करो. तो लेट अस सी द आंसर. तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना है मतलब e रेज टू 2t को गायब करना है और हमें पहले फाइंड आउट करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू 5. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू 5 क्या है? स्टैंडर्ड फंक्शन. इट इज गामा ऑफ 6 अपॉन s रेज टू 6. गामा ऑफ 6 क्या है? 5 फैक्टोरियल अपॉन दिस s रेज टू 6.
अभी 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं. इट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. या डायरेक्ट कैलसी में इसका डायरेक्ट फंक्शन भी है. तो इसका आंसर आता है 120 अपॉन s रेज टू 6. तो हमने फाइंड आउट किया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू 5. इट इज 120 अपॉन s रेज टू 6. Now let us use first shifting property. Now let us multiply this by e raised to 2t. तो मिलेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू 5 इंटू e रेज टू 2t. तो यहाँ e रेज टू 2t से मल्टीप्लाई किया. राइट हैंड साइड में सिर्फ s के जगह पे रिप्लेस करना है s माइनस 2. तो हमें मिलेगा 120 अपॉन s माइनस 2 द होल रेज टू 6. ये पावर 6 है तो इस ब्रैकेट को कुछ नहीं करना है. एंड दैट इज द फाइनल आंसर. ओके यहाँ पे इस ब्रैकेट को वैसा का वैसा छोड़ना है. हमें बायनोमियल एक्सपांशन आता है, इस चीज का शो ऑफ नहीं करना है. प्ले सेफ, लीव इट एज इट इज. ओके एंड दैट इज द आंसर. डिड वी अंडरस्टैंड दिस? ओके सो दैट इज ऑल आई हैड प्लान्ड फॉर टुडे. एंड एज यूजुअल ये आपका आज का प्रैक्टिस का प्रॉब्लम है. आपको मैं 5 मिनट में इसका मटेरियल और क्विज अपलोड कर दूंगी. इट विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द डे. तो यू कैन टेक अ ब्रेक नाउ बिफोर योर नेक्स्ट लेक्चर. आपके पास 5 मिनट का ब्रेक रह गया है. सो यू कैन टेक अ ब्रेक एंड अटेम्प्ट द क्विज लेटर एनी टाइम. ओके थ्रू आउट द डे. थैंक यू डियर्स. कुछ डाउट है तो पूछना, कल के लेक्चर में हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं. ओके ओके थैंक यू. टेक केयर ऑल ऑफ यू ऑल.